गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गना शॉट। गना शॉट में आप सबका स्वागत है एंड जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग अरुणाचल प्रदेश। और टू अंडरस्टैंड अरुणाचल प्रदेश, आई हैव समवन हु कमांडेड अ डिवीजन इन अरुणाचल प्रदेश और ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश, General Rajiv Narayanan. Rajiv, welcome to Gana Shot, and I'm sure you'll educate us on Eastern Arunachal Pradesh. Thank you so much, sir. It's a pleasure to be always a pleasure to be on your platform. आप ईस्टर्न अरुणाचल बोलते हैं, हम उसको रेस्ट ऑफ अरुणाचल बोलते हैं Arunachal, yeah. because Tawang for us is like a postage stamp. Posted, And right. you're right. When I was there initially as the deputy, our AOR was bigger than Northern Command, Correct. and that used to Right. be my opening statement to all the VIPs because I used to brief them a lot. So a lot of people used to come, so I used to give them the area and say कि भाई साहब, this is bigger than Northern Command और एक division है, वहाँ पूरी command बैठी है. Yeah. Right. Then of course one more division came, and we And yeah, rest of I Arunachal know का that. west and rest of Arunachal का east करके हो गया East. था. It would be interesting because for a lot of people, east ends at Guwahati. And there is still more than 1,000 kilometers further east of Guwahati, which is India. Yeah. तो वो भी दिखाऊंगा मैं. नहीं आज इसीलिए है, I मैं have सबको बताना चाहता हूँ. driven from Guwahati airport, which is on the outskirts of Guwahati, to our cantonment, which is between Dibrugarh and Tinsukia, non-stop, 9.5 hours driving time. Yeah, I know. Beautiful road. I know Non-stop driving 9.5 hours. और अभी इंडिया और बाकी है. और बाकी है, उधर से एक और दिन की जर्नी ऊपर बाकी से है. भी और दाहिने भी और नीचे भी काफी बाकी है. No, I am aware because I have had 3 tenures in that area. In fact, 4 tenures in the northeast, and I've commanded my brigade there. That was my last command in the east. But I know what you're talking of, and I've been in Tawang also ahead of it. Right. So आज मैं ये जो सिलसिला है गना शॉट में आपको मिलेगा, ये जो मैंने शुरू किया है 10-15 दिन पहले हमने अरुणाचल के बारे में, सॉरी, अंडमान निकोबार के बारे में बात किया था और आप सबको वाकिफ किया था अंडमान निकोबार के बारे में, 10 डिग्री चैनल, मलक्का स्ट्रेट वगैरह वगैरह, विद समवन हु वाज देयर, हु कमांडेड ट्रूप्स देयर, हु कमांडेड एवरीथिंग, ताकि आपको क्लियर स्ट्रेटेजिक व्यू मिले कि क्या हम क्या बोल रहे हैं. इसी प्रकार अभी अगला उसके अंडमान निकोबार के नॉर्थ, we are now going to talk of Arunachal Pradesh. At the outset, let me put in context what General Narayanan was saying. Arunachal Pradesh traditionally consists of 2 sectors. One is the Kemeng sector or the Tawang sector, right? And the rest is rest of Arunachal Pradesh, which he said is bigger than the Northern Command itself. And लोगों को पता ही नहीं है क्या है ये. मैं यकीनन बता सकता हूं, जब when he finishes today, we will all be educated. Even I'll be educated little more than what I knew before. That I am very confident, because every time I've learnt of it, I've learnt more. And you'll know where Brahmaputra is and how many rivers constitute Brahmaputra, वगैरह वगैरह वगैरह. But Rajiv, I'm going to sidetrack a bit. Okay? Sure. कल G20 मीटिंग समिट खत्म हुआ और सब बोल रहे हैं कि इट वाज अ ग्रेट विक्ट्री फॉर इंडिया. ओके, इससे पहले कि हम अरुणाचल प्रदेश के अंदर घुस जाएं, आई वांट यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस. व्हाट आर द मेजर issues which India can say this were the achievements of this G20, and it happened for India, and what are the prospects for India? 1. 2, how do you see the outcomes of the G20 summit in the India-China equation, especially considering that Mr. Xi Jinping didn't come? Okay, why didn't he come? Okay, was it a snub or was he scared of coming here? For many reasons, you can dilate on them. And the third, where does this leave good old Pakistan?
Yes. It's good. Okay, so let's start with the first one. Yes. India, All right, India. the biggest achievement, which the world also was surprised, was the unanimous acceptance of the New Delhi Declaration on day one itself. Normally, जब तक खत्म होता है मीट तब जाके निकलता है. This was day one. And I would give full credit to all our, of course, the Prime Minister and NSA and the Foreign Minister, but all the Sherpas. And they held so many meetings all over the country with the concerned people of the various countries. And that, all that finds its place in the declaration. Since all the hard yards had been done, some 200 to 300 meetings were done, you found that everything was found its relevant place. And even the toned down wording from Bali, the toned down wording on Ukraine conflict. The only lone, I would say, person who was saying that no, this is not correct was Zelensky, whose voice doesn't matter today. The second major issue was the unanimous acceptance of African Union as a permanent member, which makes it G21. Now, the complete Africa is part of the global south. And in the closing ceremony, India and Brazil saying that in Brazil next year, under Brazil's presidency, they will see what they can bring in, and Latin American representation will become part of the G21, will become G22. Now, this is where the bulk of your global south resides, and indicates that they are accepting India more and more as their voice. For China, the India, Middle East, Europe economic corridor. Now that is something which is path breaking, and I would say it is ये एक स्टेप फॉरवर्ड है I2U2 से. वही लोग हैं, इजराइल है, यूएई है, इंडिया है, सऊदी अरेबिया को साथ में ले लिया है, एंड आपका कॉरिडोर जा रहा है वाया ग्रीस स्ट्रेट इनटू यूरोप. तो ये एक बिग काउंटर आ जाता है चाइना का जो अटेम्प्ट है वाया इजराइल, टर्की एंड गोइंग इनटू यूरोप economic corridor. The other threat which China is facing is जो अनाउंस किया था कि अगले साल ब्राजील के इसमें they would be announcing, they are already working on it, a trans-African economic corridor. Now ये अगेन पूरा मतलब आपके साथ है, आपके ऊपर ट्रस्ट है. They are agreeing to all this because the global south has trust that India will make sure it comes as a benefit for them, और चाइना के जैसे डेट ट्रैप नहीं होगा. और इन सबसे पहले अपना मीटिंग हुआ था जो आईसेट को आगे कैसे लेके जाना है और क्या क्या करना है उसका पूरा डिटेल, और अगेन फुल मार्क्स टू द MEA एंड ऑल द कंसर्न मिनिस्ट्रीज की सारा बातचीत पीछे नेगोशिएशंस कंप्लीट था. जैसे मीटिंग खत्म हुआ, द एग्रीमेंट, फ्रेश एग्रीमेंट 28 पॉइंट की 27 पॉइंट एग्रीमेंट वाज रिलीज्ड. So this is full marks of what all has been done. Now the biggest, I would say, threat to the BRICS for the next 3 years, India, Brazil, South Africa, US forum. इसमें से तो केवल रशिया और चाइना बाहर है, अदरवाइज ब्रिक्स के तो इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका है. अंडर द गार्ब ऑफ सेइंग दैट इट इज द नेक्स्ट 3 प्रेसिडेंसीज ऑफ G20, 21, 22 जो भी रहेगा. अभी ब्राजील है, नेक्स्ट साउथ अफ्रीका है, उसके नेक्स्ट यूएस है, एंड दे विल सी the progress on all the points that have been covered in our New Delhi meeting, जिसका नवंबर में एक और वर्चुअल मीटिंग होना है टू सी और क्या क्या करना है, वेयर स्टेप इज सपोज्ड टू बी टेकन.
नाउ दीज आर द मेजर टेकअवेज जो आपको दर्शा रहा है द ग्रोइंग स्टेचर ऑफ इंडिया, एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिया not just in the global south but also in the global north. हुआ ये है कि ग्लोबल नॉर्थ को आप चाहिए बिकॉज वर्ल्ड बैंक सब कह रहे हैं इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ इज गोइंग टू लीड द ग्लोबल इकोनॉमी, उनको इंडिया की जरूरत है। इंडिया ने बोला है मुझे ग्लोबल साउथ को साथ लेके चलना है, मेरे साथ जो होगा वो ग्लोबल साउथ साथ चलेगा। सो द ग्लोबल साउथ एंड ग्लोबल नॉर्थ आर वांटिंग यू, सो you are not becoming a pole sort of a thing. लोग कहते हैं आप थर्ड पोल बोल रहे हो, नहीं, पोल मतलब एक फर्स्ट पोल है उसके पीछे लोग हैं, सेकंड पोल है उसके पीछे लोग हैं, थर्ड पोल है उसके पीछे लोग हैं ना। आप कह रहे हो कंधे से कंधा हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, तो आप किस पोल में भी हो जाओ आप इंडिया के साथ हैं। सो दैट इज नॉट अ पोल। नाउ वेयर डज दैट लीव चाइना? वन लाइन, they have missed the bus. यहां काफी बिग डील था। जैसे आप देखो चाइना अपने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ जो हमने फरवरी में किया था, उसके पहले चाइना का रेटोरिक क्या होता था? ग्रेट पावर रिलेशंस, न्यू विजन फॉर ग्रेट पावर रिलेशंस, G2 चाइना एंड यूएस, दैट आई हैव अराइव्ड, आई एम अ ग्रेट पावर। जैसी 123 कंट्रीज ने एक्सेप्ट कर लिया विजन ऑफ फॉर द ग्लोबल साउथ की इंडिया के साथ आप चलेंगे, 123 कंट्रीज आउट ऑफ 193 कंट्रीज इन यूएस इज नॉट अ जोक। यानी यू कैन स्विंग एनीथिंग। सडनली चाइना का वॉइस चेंज हो गया कि नहीं 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 नहीं, मैं तो डेवलपिंग कंट्री हूं, मैं भी ग्लोबल साउथ के साथ हूं। तब तक तो ग्लोबल साउथ था ही नहीं, G2 कर रहे। नहीं, एक ही कमेंट है, आपने बोला G2 में चाइना हैज अराइव्ड, अभी हाँ, ये G20 के बाद चाइना हैज डिपार्टेड। ओ बिल्कुल बिल्कुल सर, बिकॉज इसमें जो उसने अपने प्रीमियर को भेजा ली क्यांग, वो तो कहीं नजर ही नहीं आया। अरे आपके ऊपर आप थोड़ी सोचो कि चाइना थोड़ी है कि मीडिया आपके पीछे जाएगा। आप कोई स्टेटमेंट दो, कुछ कमेंट दो, कोई बात करो, आगे आओ, कुछ नहीं। देन इटली भी BRI के बाहर जा रहा है, उनके प्राइम मिनिस्टर ने तो ली क्यांग को क्लियर बोल दिया कि हम तो जा रहे हैं बाहर। अब आपका जो इंडिया मिडल ईस्ट ये EU का इकोनॉमिक कॉरिडोर है, यूरोप का इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इटली भी चाहेगा कि जो ग्रीस के थ्रू जा रहा है उसका एक ब्रांच इटली में आ जाए, तो उसको BRI क्यों चाहिए? उसको BRI चाहिए ही नहीं। अच्छा, अब जो ये मौका था कि भाई इंडिया के साथ वो ग्लोबल साउथ के साथ खड़ा हो सकता था, वो अब खत्म, वो अब खत्म। तो लाइक यू सेड, इट डिपार्टेड एंड द प्रॉब्लम इज दैट ही इज स्केयर्ड नाउ टू कम आउट, क्योंकि इंटरनल चैलेंजेस बहुत आगे हैं। उसको PLA के अंदर भी उसको चैलेंज आ रहा है, उसके पार्टी के अंदर उसको चैलेंज आ रहा है, लोग उसके साथ नहीं है। तो उसका बॉडी लैंग्वेज भी ब्रिक्स में अगर आप देखोगे तो उतना मतलब पॉजिटिव नहीं था, आईज में वो ग्लिंट नहीं था, डरा डरा सा था। ली च्यांग का भी देख लो आप, बॉडी लैंग्वेज यहाँ पे जब आया था तो थोड़ा डरा डरा सा था, मतलब उतना मतलब कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा था। लेकिन मेरा यही कहना है कि जब इनके अंदर इस तरह से स्ट्रगल होता है तो ये जो डिक्टेटर्स होते हैं, जैसे माओ था, टंग शाओपिंग था, अब ये बना है शी जिनपिंग, वो कहीं ना कहीं एक्सटर्नलाइज करने के लिए लड़ाई छेड़ेगा। तो वी हैव टू बी केयरफुल एज फार एज आर LAC इज कंसर्न, वहां पे गार्ड डाउन नहीं कर सकते। एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, वो तो ये रो रहे हैं कि बाकी आसपास के कंट्रीज को लाइक बांग्लादेश एंड अदर्स हमने तो वैसे ही इनवाइट कर लिया था एज गेस्ट की आके अटेंड करो। शेख हसीना वाज देयर, इनको इनविटेशन ही नहीं किया था। ये तो मतलब जैसे बोलते हैं ना, द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू एन एनिमी इज नॉट इवन थिंक अबाउट हिम, उसके बारे में सोचो भी नहीं, जस्ट इग्नोर हिम कि यार कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही अंदर से फट रहे हैं। तो अभी जैसे मैं कई दफा बोला हूं, इनकी जिंदगी निकल गई है एज बीइंग एन Airbnb, कि कोई आ जाओ रेंट पे आ जाओ, रेंट दे दो, रह लो, चले जाओ।
अब तो दोनों तरफ से इनके एयरबीएनबी का कोई वैल्यू ही नहीं रहा। वो तो फ्री में आ रहा है तालिबान वाला। अब तो तालिबान तो वाला नहीं, फ्री में आ रहा तालिबान वाला तो इसका एयरबीएनबी कब्जा करने आ रहा है ना। है। वो तो आई एग्री विद यू। केपी चित्राल इलाका वगैरह सब जा रहा है, कुछ नहीं कह रहा है। उनके तो इतने सारे, सर दे आर नॉट जस्ट वेस्ट ऑफ इंदस, they have created their local governments even in Punjab. पंजाब क्लासिक केस देखो ना सर, इनके जैसे आपने बताया था इन योर टॉक, एक भी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट है ही नहीं कहीं भी। है ही नहीं। All the provinces and the center is a caretaker government, and caretaker is the chief of army staff. अच्छा, आर्मी स्टाफ कह रहा है कि मैं इकोनॉमी करूंगा, तो लड़ेगा कौन? यही बात है। खैर, अब पूरा का पूरा ये हो गया है कि चाइना भी उससे गुस्सा है कि उसके एसेट्स और उसके लोगों के ऊपर हमला हो रहा है जो ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा। अब इसमें वी हैव टू बी केयरफुल फॉर टू थिंग्स। ही कुड गो कन्वेंशनल शॉर्ट टर्म बिकॉज ज्यादा पैसा तो है नहीं उसको करने के लिए, बट मिलिटेंट स्ट्राइक समवेयर और द अदर ही माइट इज ऑन द कार्ड्स कि भाई डोंट अंडर एस्टिमेट मी, मैं कर सकता हूं। सो दिस इज वेयर इट इज दैट दिस G20 is like telling the world that India has arrived, because the manner in which it was held, what all meetings preceded that, and the way it was conducted there, and in I would say a clockwork military precision, the manner in which it was done, that has left the world amazed. Yes, that has left the world. And every state, every union territory has been involved in some or the other meeting as a lead for some or the other aspect of this. And I might like to just cap it off with the whole thing. I read some inputs from the Chinese. Unka jo CICIR, which is the think tank, has also commented, and a lot of people. The Chinese reaction of the G20 is a 5-letter word. It's called GRIPE, gripe. They're griping. Okay, so much so for आज का जो हमने एक bird's eye view लिया G20 के बारे में. Thanks for your views on the G20. Okay, now we will get to the rest of Arunachal Pradesh, or Eastern Arunachal Pradesh as we understand, right? And this is going to be a very important thing for educating all those who are seeing. This is the crux of today's talk. Some of your questions we'll do take at the end. Even if you have to overshoot our time, we'll do that. We're not in a hurry. So should we start with Eastern Arunachal Pradesh? Start with the slides. With the slides? Yeah. So that's why sir Eastern Arunachal बोलते हैं, हम इनको रेस्ट ऑफ अरुणाचल बोलते हैं, बिकॉज दिस इज तवांग को हम इंक्लूड नहीं किया है, छोटा है, और तवांग के बारे में दुनियादारी सब जानती है, सबके अपने व्यूज हैं। इस इलाके के बारे में कम ही लोग बात करते हैं। सो आई विल गिव यू अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ दिस एज नेक्स्ट स्लाइड्स। तो ये इलाका है, अपने पूरे मैप में देखो जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, इसके बारे में मैंने बात करनी। नेक्स्ट सर। तो अरुणाचल प्रदेश के ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 17 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। आप देख लो, तवांग, कामेंग, वेस्ट कामेंग, इसको छोड़ दो, बाकी पूरा कुरुंग कामे, अपर सुबनसिरी, लोअर सुबनसिरी, सियांग, दिबांग, अंजाव, चांगलांग साउथ, ये सारा होता है रेस्ट ऑफ अरुणाचल, जिसके बारे में मैं बात करूंगा। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट स्लाइड्स। या नाउ आप देख लो, 99,514 square kilometers is its area, which is bigger than Northern Command. और इसके आप देख लो कितने रिवर्स आते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट आप देख लो, ब्रह्मपुत्रा का नाम बॉटम में मैंने लिखा है, कहाँ आता है। उसके पहले कोई रिवर ब्रह्मपुत्रा नहीं है।
ये जो पासीघाट लिखा है उसके नीचे सदिया के लेफ्ट, ये डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया के बीच में है, जहां सियांग, दिबांग और राइट साइड से ये लोहित रिवर आ रहा है। ये सारे आके मीट करते हैं इस जगह, वहां से ब्रह्मपुत्र शुरू होता है। आप पासीघाट। सांगपो जो ऊपर है वो ब्रह्मपुत्र नहीं है, वो एक ट्रिब्यूटरी है, और केवल 11 से 13% पानी ब्रह्मपुत्र का वहां से आता है। बाकी सारा, ये सारे रिवर्स आप देख रहे हैं, मैंने अभी बंगाल के रिवर्स नहीं डाले, उसके भी पानी आते हैं, बाकी सारे यहां से आते हैं। लोग कहेंगे कि भाई लोहित तो चाइना से आता है। आप टॉप राइट पे देख लो क्या लिखा है, कांगरी कार्पो ग्लेशियर्स, 68 ग्लेशियर्स हैं यहाँ पे, उससे 2 रिवर निकलते हैं, सबसे दाहिने में लोचोचू और उसके अंदर रोंगटोचू। ये दोनों आके एक रीमा नाम का जगह है चाइना में, जायू काउंटी में, वहां मिलते हैं, वहां से ये लोहित आता है और डीचू पास के थ्रू निकल के आता है। ग्लेशिएटेड रिवर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, कोई डैम शैम नहीं बना सकते, इसको वो कुछ नहीं कर सकता, इन नदियों को कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इतने ग्लेशियर्स हैं वहां पे। तो बाकी सब इंडिया के अंदर ही निकलते हैं यार, हम रोक इसलिए रहे, ठीक है, दबाव डालने के लिए अच्छा है कि सांगपो पे ये कर रहा है वो कर रहा है, ठीक है, उसमें केवल यही डर होता है कि अगर ज्यादा खोल देगा तो फ्लडिंग वगैरह हो जाता है। तो अभी आप देख लो, जो असम और अरुणाचल के पीएम्स है वो अभी बराजेस बना रहे हैं, ताकि ये जो फ्लडिंग करेगा तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ा डैम है हमारा सुबानसरी में, वो बन रहा है, तो वो भी तैयार हो जाएगा, एंड में उसका भी मैं जिक्र करूंगा, दिखा दूंगा आपको। नेक्स्ट। तो क्लाइमेट क्या है, मिनिमम -1 डिग्री जाता है, मैक्स 28 समर में, विंटर्स में -40 हो जाता है, और समर में 6 एंड मैक्सिमम इज अबाउट 16 डिग्रीज। विंटर में काफी विंड आते हैं, लेकिन ये थ्रू आउट द ईयर जो पासेस हैं वहां पे काफी हवा चलता है, इसीलिए जब आप हेलीकॉप्टर से जाते हैं 12-1 बजे के बाद आप जा नहीं सकते, क्योंकि हवा बहुत चलने लगता है पासेस में। प्रेसिपिटेशन सबसे ज्यादा ईस्ट तिब्बत की तरफ होता है, और वेस्ट की तरफ जैसे जैसे जाते हैं प्रेसिपिटेशन आपका कम होते जाता है। इसीलिए जब आप तिब्बत का मैप देखेंगे, कैलाश और उसके ईस्ट में काफी रिवर्स वगैरह हैं, कैलाश के वेस्ट में 1-2 ही रिवर हैं, आपका सतलज निकलता है और आपका इंदस निकलता है, यही है। मैक्सिमम मॉनसून कब होते हैं, 2 टाइम पे होता है, एक जून जुलाई और अगस्त सितंबर। ऑल्सो रिमेंबर, जून जुलाई का तो होता ही होता है, मार्च टू मई के बीच में समर शुरू होना होता है, तो ये जो स्नो है वो मेल्ट होता है उसके पानी से भी फ्लडिंग होता है। तो जनरल फ्लडिंग 3 दफा होता है, एक बार मई के आसपास होता है, थोड़ा बहुत होता है बिकॉज ऑफ द रिवर स्नो विच इज मेल्टिंग, और वही मेल्टिंग स्नो के ऊपर आपके पास जून जुलाई में काफी हैवी मॉनसून होता है, तो एक फ्लड होता है। सेकेंड फ्लडिंग का टाइम आता है, अगर होता है बारिश ज्यादा हो जाता है, तो अगस्त सितंबर के टाइम होता है। तो ये है वहां का मतलब, पानी और खूब सारा पानी ये 3 सीजन है वहां पे। नेक्स्ट। हाँ, अभी एक ये समझना है कि इस इलाके में एक बहुत बड़ा पर्वत है जिसका मैंने फोटो दिखाया है, नामचा बरवा। इट्स अबाउट 7,000 प्लस। हिमालय रेंज यहाँ पे आके खत्म हो जाता है, और उसके बाद रिवर्स जो हैं नॉर्थ साउथ फ्लो करने लगते हैं। अभी सारे रिवर्स नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट की तरफ फ्लो करते हैं, यहाँ से नॉर्थ साउथ। तो आप सांगपो का भी देख लो, वो ग्रेट बेंड है, नामचा बरवा के अराउंड जा रहा है। ये जो ग्रेट बेंड लिखा है वहां पे जो स्टार लगा है, नामचा बरवा वो पर्वत है, उसके राउंड जाता है और नॉर्थ साउथ हो जाता है स्ट्रेट। और जहां से हिमालय खत्म होता है उसके साइड से फिर मिश्मी हिल्स आ जाते हैं, वो पूरा मिश्मी हिल से नीचे जाता है। तो इट्स अ राइट एंगल वॉर्प। ठीक है, नेक्स्ट। ये
चाइना का क्लेम लाइन है जो उनके चिनुआ में दिया था। तो ये आप देखोगे साउथ अरुणाचल को क्लेम नहीं करता, दैट इज वाई ऐसे पूरा अरुणाचल क्लेम नहीं कर रहा है। ये भूटान के साउथ आप देख लो, ग्रीन में जो इलाका दिखाया है वो तवांग है, उसको क्लेम करता है। और भूटान के सदर्न मोस्ट बाउंड्री से लाइन ड्रॉ करता है जस्ट नॉर्थ ऑफ ब्रह्मपुत्र, और ये तकरीबन वलोंग के पास जाके साइड पे खत्म कर देता है, उसके आगे वो क्लेम नहीं करता। तो ये इसका क्लेम है। और ये तो सारा डिटेल में मल्टी ईयर एनालिसिस करके और सारा स्टडी करके चाइना के आर्काइव से चिंग डायनेस्टी, मिंग डायनेस्टी, युआन डायनेस्टी सबके क्लेम्स, तिब्बत के क्लेम्स सब देख के बोला है कि ये जो क्लेम चाइना ने दिया है साउथ तिब्बत का झूठा है। ये पिछले साल ही कांग्रेस, यूएस कांग्रेस को ब्रीफ किया था, कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस ने पूरा डिटेल्ड स्टडी करके कि ये झूठा है। ये कभी किसी टाइम भी, कितना भी पीछे चले जाओ, कभी नहीं रहा है तिब्बत के नीचे। नेक्स्ट। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ सबको, इसी के बारे में हमने एक वीडियो में जनरल नारायणन एंड आई वी सेड दिस, यस, when we said get lost to one China, time to revisit one China के बारे में, जब उन्होंने मैप दर्शाया था कि राइट when we had discussed that नया मैप उन्होंने जो दिखाया, यही बात हमने भी बात किया about the congressional committee or the historical aspects of Tibet and the historical aspects of South Arunachal, and how South Tibet as a word never existed. never existed. It started after 2003. ये सब हमने उसमें बताया। Yes. जिसको ये है उसके साथ कनेक्ट कीजिए। इसमें एक चीज देख लो सर, नॉर्थ म्यांमार के लोगों को माउंटेनस एरिया इनहैबिटेड बाय सैवेजेस, इनके वो जो कैरेक्टर्स हैं उसका मतलब ये, नॉर्थ म्यांमार माउंटेनस एरिया इनहैबिटेड बाय सैवेजेस बुला रहा है। ये इनका मैप है तिब्बत ऑनलाइन में, चिनवा न्यूज एजेंसी का, इनका चाइनीज मैप है। ठीक, सो विल गो टू द नेक्स्ट वन। ओके, तो ये वही था जो लेटेस्ट मैप मैंने बताया था कि भाई अरुणाचल, अक्साई चिन, ताइवान, डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी, सबको इन्होंने अपने टेरिटरी में दिखा रखा है। नेक्स्ट सर। ये हमें समझना चाहिए तिब्बत ऑटोनोमस रीजन का। आप देख लो, मैंने दिखाया हुआ है कि जैसे ही आप ईस्ट जाते हो कितने रिवर्स हैं, बड़े बड़े रिवर्स, और इसके बीच में माउंटेन रेंज है। आगे चल के समझाऊंगा कितना टेरेन फ्रिक्शन है। यारलुंग सांगपो है, साल्वीन है, मेकोंग है, यांगसे है, येलो रिवर है, और उनके बीच में ये पर्ल रिवर भी है जो हांगकांग तक जाता है। इनके बीच में बड़े बड़े माउंटेन रेंजेस हैं। सो इसके अक्रॉस आने में टेरेन फ्रिक्शन जो हम बोलते हैं इज वेरी हैवी। इसीलिए जो इनिशियल आप देख लो रेलवे लाइन भी ऊपर से आया, जो किंगहाई प्रोविंस से लेके ऊपर से लेके आया है टू गेट टू लद्दाख, बिकॉज यहाँ से लेके अभी बना रहा है, काफी टनलिंग कर रहा है, काफी कुछ कर रहा है। वहां पे जब मैं सर्विस में था, इनके जितने भी रोड्स हैं, हर 5 किलोमीटर में एक प्लाटून, रोड मेंटेनेंस प्लाटून डिप्लॉयड है, हर 5 किलोमीटर। दैट मीन्स अपने 2.5 किलोमीटर एक तरफ, 2.5 किलोमीटर दूसरे तरफ, 5 किलोमीटर कवर करने के लिए एक प्लाटून रखा है। तो आप देख लो कितना, मतलब वहां पे प्रॉब्लम्स होता होगा सड़क पे कि एक प्लाटून को 5 ही किलोमीटर दिया है। हम तो और भी ज्यादा रेट देते हैं, 15, 20, 25 किलोमीटर का इलाका दे देते हैं, ये तो 5 किलोमीटर दे रहा है, हर 5 किलोमीटर। नेक्स्ट। तो ये मैंने दिखाया जो इसको टेरेन कंस्ट्रेंट्स है, नीचे का एरो देख लो। तो इसलिए सारा कुछ ऊपर से आने के लिए जो सेंट्रल रूट बोलते हैं हम, किंगहाई से आता है और वहां से नीचे आता है, वो मूवमेंट में उसको आसानी होता है। ये मूवमेंट में काफी प्रॉब्लम है, और इसी को अपग्रेड कर रहा है, रोड्स बना रहा है, रेलवे लाइन वहां लेके आ रहा है, नीचे से रेलवे लाइन लेके आ रहा है, और लेटेस्ट एयरपोर्ट नेटवर्क बढ़ा रहा है, काफी एयरफील्ड्स तैयार कर रहा है। ये इस मूवमेंट के टेरेन फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट।
तो ये इसका रोड नेटवर्क है। जो आप सेंट्रल में देख लो, आमदो नाकू दिखाया मैंने, जो लाशा आ रहा है, ये सेंट्रल हाईवे है। आमदो और नाकू इसके बिगेस्ट लॉजिस्टिक हब्स हैं यहाँ के। दूसरा है ईस्टर्न हाईवे, जो आप देख रहे हो चंगदू से होते हुए नाकू के तरफ आ रहा है, एक और उसके नीचे होते हुए लाशा को आ रहा है, और एक और अपने रैल्प के नीचे से एक ईस्टर्न हाईवे का सदर्न लूप भी निकाला हुआ है, और एक पांगता राउ से होते हुए, यूनान से होते हुए म्यांमार के अंदर इसका रोड आता है। फ्रेंडशिप हाईवे है, वो जलासा से काठमांडू आता है वाया शिगात से होते हुए। दूसरा रोड इसका जो है, जो अक्साई चिन से दिखा रहे हैं हम, जो लासा आ रहा है, ये जो 50s में बनाया था, जो सिंक्यांग से होते हुए अक्साई चिन से होते, ये वेस्टर्न हाईवे का सदर्न अलाइनमेंट है। नदर्न अलाइनमेंट शिकवानवे से गर्द से होते हुए आमदो आता है। तो इस तरह से साका, शिगात्से, आमदो, नाकू, चामदो, पांगता, ये इसके काफी कम्युनिकेशन हब्स और लॉजिस्टिक हब्स बन जाते हैं। नेक्स्ट, अभी वहां से नजदीक जो लेके आ रहा है, ये सारे मैंने दिखाए हैं आपको। दोनों साइड में आप देख लो, लेफ्ट साइड में, वेस्टर्न साइड में क्लास 18 बनाए हैं, और ईस्टर्न साइड में क्लास 9 ही रखा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया वहां पे कांगरी कारपो के ग्लेशियर्स हैं इतने सारे। राउ से रीमा अबाउट 268 किलोमीटर लेंथ है। 28 से 30 रोड मेंटेनेंस प्लाटून है यहाँ पे, इतने ज्यादा। एंड तो बीच में जो है इसका इलाका, जो डॉटेड मैंने बनाया है, वो अभी कुछ साल पहले ही कनेक्ट हुआ है। मिटॉग काउंटी होता है ये, आगे दिखाऊंगा मैं आपको। गोलोंगला करके एक जगह है इन ग्लेशिएटेड एरिया में, जो पहाड़ है हिमालय का, उसके ग्लेशिएटेड एरिया के वेस्ट, उसके थ्रू उसने टनल बनाया है, ताकि 24/7 365 डेज ए ईयर यहाँ पे कनेक्टिविटी रहे। ये लास्ट काउंटी था जो कभी कनेक्टेड नहीं था, तो उसको कनेक्ट किया है अभी हाल ही में। और तकरीबन एवरेज डिस्टेंस एलएसी से 3 से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस है। नेक्स्ट, ये है वो जो मैंने बताया था, गोलोंगला टनल बनाया है, वो टनल का फोटो भी दिया है। मेन सदर्न लूप जो है ईस्टर्न हाईवे में, उसमें एक जगह है बोमे, वहां से नीचे आता है, और गोलोंगला पहाड़ जो राइट साइड में आप देख रहे हो, उसके थ्रू उसने टनल बनाया है और मेडॉग तक सड़क लेके आया है। नेक्स्ट, अभी देखते हैं तो वेस्टर्न थिएटर कमांड, और जो नॉर्थ म्यांमार के तरफ से भी हमको डर लगता है कई दफा वो आ सकता है, तो वेस्टर्न पोर्शन ऑफ सदर्न थिएटर कमांड, ये दो आते हैं हमारे इलाके के अगेंस्ट। नेक्स्ट, अब इसमें आप देख लो लाइकली टास्क्स क्या है। एक तो ऊपर लेफ्ट मोस्ट टॉप में सिंचांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट उरुमची, उसके नीचे 4 डिविजन्स थे, जिसके 2 डिवीजन ऑलरेडी इसने ईस्टर्न लद्दाख में लगा दिए। तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में 3 कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड है, 51, 52 एंड 53, तो ये अभी डिप्लॉयड हैं एलएसी में। बाकी सारे हैं हान हार्टलैंड। आप देख लो 71, 72, 73, 74, 75, 71, 72, 73 ये ईस्टर्न थिएटर कमांड के हैं, 74, 75 सदर्न थिएटर कमांड के हैं, 76, 77 जो लाल में है, सफेद में इसलिए दिया है क्योंकि ये ऑपरेशंस अगेंस्ट ईस्टर्न सी बोर्ड के लिए तैयार किए, ये सारे एम्फीबियस एक्सरसाइज करते रहते हैं। तो 71, 72, 73, 74, 75 ये 4-5 ग्रुप आर्मी है, टोटल डेडिकेटेड फॉर एम्फीबियस ऑपरेशंस। 78, 79 नदर्न थिएटर कमांड, नदर्न सी बोर्ड प्लस डर रहता है इसको रशिया के अगेंस्ट। 76, 77 है जो हमारे साथ हैं, और रिजर्व जो इसके पास है 81, 82, 83 बीजिंग के आसपास जो खड़े हैं, ये इसके सेंट्रल थिएटर कमांड के, ये रिजर्व्स इसके आते हैं। नेक्स्ट,
अभी अगर हमारे अगेंस्ट आना है तो कौन से रोड एक्सेस और रेल एक्सेस है। हालांकि अभी लाशा से लिंशी की तरफ उसने रेल बनाया है, लेकिन पूरा अभी तक वो फुली एक्टिवेट नहीं किया है फॉर मूवमेंट, बिकॉज वो लाशा से आके ही आएंगे। अभी लिंशी से बना रहा है चांगदू के लिए। जब ये चांगदू के बन जाएगा तब वो एक रेलवे लाइन डिप्लॉयमेंट के लिए अवेलेबल होगा, अभी नहीं है। तो ये आपको दिख रहा है पूरा रोड और रेलवे लाइन, ये सब बनाया है। क्योंकि पहले क्या होता था, इसको बिल्डअप करने के लिए और लड़ाई छेड़ने के लिए 2 सीजन लगते थे। जैसे इस साल तैयार करता है तो अगले साल लड़ सकता है। ये सब इसने किया है ताकि एक ही साल में, एक ही सीजन में इंडिया के अगेंस्ट लड़ सके। तो वो जो उसका टाइम डिफरेंशियल और कैपेसिटी है, वो सब इसने बिल्डअप किया हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ताकि एक सीजन में आपके अगेंस्ट लड़ सकता। नेक्स्ट। तो ये वो रेल थे और ये रोड का है जहां से आ सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से इसने अपने पूरे नेटवर्क तैयार करके रखे हैं ताकि बिल्डअप जल्दी हो सके। मैंने बताया था आपको, वो 4-5 जो मेन लॉजिस्टिक नोड्स हैं उसको बिल्डअप किया है, लेकिन वो भी खाली है। और आगे की तरफ भी फॉरवर्ड लोकेशन के सामने भी उसने काफ़ी लॉजिस्टिक वेयर हाउसिंग और स्टोरेज डंप्स तैयार किए हैं, लेकिन वो खाली हैं क्योंकि उसके ट्रुप सारे वहां पे हैं। सामान यहाँ डंप करने के लिए सामान का लाइफ होता है, तो उसको बार बार आके उसको रिसाइकिल करना पड़ेगा। तो सामान अभी नहीं लिया है, लेकिन ये सारा कुछ किया ताकि एक ही सीजन में सारा कुछ सामान लेके आके आपके साथ लड़ सके। तो अगर हम आई एम श्योर हमारे NIA, रॉ और अपने MI भी ये सब ध्यान देते हैं, क्योंकि हम ये इसका रिपोर्ट भेजते रहते थे कि कौन सा एरिया है जहाँ से सैटेलाइट से देखते रहना है। क्योंकि वो जो चोक पॉइंट है, जो कम्युनिकेशन पॉइंट है, उसके थ्रू तो जाना ही जाना है। तो आप देख सकते हो क्या क्या जा रहे हैं, कितने गाड़ियां जा रही हैं, कौन से रेलवे आपके गुड्स ट्रेन कितने आ रहे हैं, क्या क्या आ रहे हैं, आप उसके ऊपर नजर रख सकते हैं। नेक्स्ट। अभी ये हमने उनका दिया था, अपना देखो क्या प्रॉब्लम है। वो टिबेट प्लेटो है, तो वो सड़क बना सकता है, वहां हिलता नहीं है। हमारा एरिया में क्या है, जैसे ये डॉटेड लाइन दिखा रहा है, 1, 2, 3 और LAC चौथा, ऐसे लेवल्स खड़े होते हैं। आपको ब्रह्मपुत्रा के रिवर लाइन से ऊपर एक स्टेप चढ़ना पड़ता है, तो वो पहाड़ शुरू होता है, वो जो रेड में है। फिर दूसरा जो ब्राउन में दिखाया है कि स्टडी आप जाते हैं, फिर आपको सडन राइज मिलता है, आप वहां पहुंचते हैं। उसके बाद स्टडी राइज मिलता है, फिर वो ब्लैक डॉटेड लाइन पे जाते हैं। उसके बाद स्टडी राइज जाता है, फिर सडनली उठता है जो आपके LAC वाटरशेड जाता है, और ये उठता रहता है। ये सारा इलाका प्राचीन काल, बहुत पहले ये यहाँ पे ओशन हुआ करता था। तो अभी भी दिखता है वहां पे, जब हम रोड के लिए कटिंग करते हैं, 2 सेट ऑफ बोल्डर्स के बीच में रेत मिलता है, नहीं तो काफी जो सिल्ट का क्ले सिल्ट जो होता है वो मिलता है। तो इसलिए लैंडस्लाइड वहां पे होना बड़ा आसान होता है, क्योंकि बारिश जब ज्यादा होता है तो ये सैंड जो 2 पत्थरों के बीच में है, या जो क्ले सिल्ट है जो पत्थरों के बीच में, वो धीरे से निकल जाता है। तो इसलिए काफी मेहनत करके, इंजीनियरिंग करके हमारे BRO और बाकी जो है वो यहाँ सड़कें बनाए हैं, और भी बना रहे हैं। तो दिक्कत बहुत है, आसान नहीं है। कई लोग होते हैं बोलते हैं यार वो चीन बना लिया, हम क्यों नहीं बनाते। वो तो फ्लैट एरिया है, प्लेटो एरिया है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो दिक्कत वाला एरिया है वो मैंने बता दिया आपको कितना दिक्कत है और कितना रखना पड़ता है, और ट्रैफिक बहुत कम चलता है उसके। नेक्स्ट। अभी हमारे रिवर्स कितने, 8 और एक 9 जो है, जो सदर्न वहां से आता है। ये 9 है जो बन के आपका ब्रह्मपुत्रा बनते हैं यहाँ पे इन अरुणाचल। उसके बाद 2 तीस्ता और अगेन उसके ट्रिब्यूटरीज वगैरह आते हैं जो आपके इसमें बंगाल में आते हैं। तो पहला है कमला कुरुंग वैली, और कितना लेंथ है उस वैली का, 235 किलोमीटर लंबा है। अंदर घुसते हैं तो ट्रांस अभी बना रहे हैं, इंटर वैली कनेक्टिविटी, वो भी अलाइनमेंट आपको दिखाऊंगा, बन रहा है अभी। ये अंदर जाते हैं 235 किलोमीटर। सुभानसरी 455 किलोमीटर लंबा वैली है।
वैली मतलब ये है कि आप ब्रह्मपुत्रा से जब उठ के आते हैं वहां से लेकर LAC का डिस्टेंस बता रहा हूँ। देन सियोम है नेक्स्ट 245 किलोमीटर। सियांग जो यारलुंग सांगपो है, इंडिया में आने के पर सियांग कई दफा दिहिंग भी बोलते हैं, सियांग रिवर है, तो ये है आपके 460 किलोमीटर। अब्रोकाला पास ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो रिज लाइन है व्हाइट डॉटेड लाइन में दिखाया है मैंने, इसको हम अब्रोकाला रिज लाइन बोलते हैं। ये वेस्ट रैल्प और ईस्ट रैल्प को सेपरेट करता है। डोमिनेंट रिज लाइन है, नॉर्थ साउथ चलता है। अब ईस्ट रैल्प में आते हैं तो पहले आता है दिबांग, उसके बाद आता है दिलाई, उसके बाद आता है दाऊ, उसके बाद आता है लोहेत, और नीचे साउथ वहां से आता है बुढ़ी दिहिंग, और एक और छोटा इसका ट्रिब्यूटरी है जो मैंने डाला नहीं है, वो दिहिंग, वो अलग है। बुढ़ी दिहिंग मतलब ये पुराना है, बूढ़ी है, पुराना है, ये पुराना दिहिंग का अलाइनमेंट है, और नया एक दिहिंग है उसको दिहिंग बोलते हैं। ये सब मिल के तब जाके ब्रह्मपुत्र बनता है, उसके पहले इसको ब्रह्मपुत्र नहीं कहते। बुढ़ी दिहिंग और दिहिंग जो है, बुढ़ी दिहिंग तो ब्रह्मपुत्र जहां लिखा है वहां मिलता है, दिहिंग डिब्रूगढ़ के वेस्ट आके मिल जाता है इसमें से। इतने सारे हैं तब जाके ब्रह्मपुत्र बनता है। इसीलिए मैंने कहा जो सियांग है जस्ट अबाउट बिटवीन 11 to 13% ही पानी देता है ये ब्रह्मपुत्र में। तो डरने की बात नहीं है कि भाई ब्रह्मपुत्र सूख जाएगा, सूख नहीं सकता, सूखेगा नहीं। या आई थिंक दैट आपने बहुत अच्छा बताया है, और मैं सिर्फ आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर चाइना वाले उनके इलाके में यारलुंग सांगपो के ऊपर एक वो डैम बना भी लें, और यारलुंग सांगपो जो मेन सियांग रिवर और वो जो ब्रह्मपुत्र, वैसे मानते हैं हम कि वो ब्रह्मपुत्र पीछे ट्रेस करो तो वो लाइन है, तो उसके अंदर पानी रोक भी देते हैं, तो उसका एक जोड़ है हमारे पास, उसका एक उपाय है। वो उपाय क्या है? उसके सिर्फ हमारे इलाके में एक और डैम बना लो, और डैम बना ला के उसमें पानी रखो। जब वो छोड़ते हैं इसमें पानी भरने दो, जब वो बंद कर देते हैं हमारा पानी है नीचे छोड़ दो। बड़ा तो सिंपल है, इट्स कॉल्ड डैम और बराज डैम। बना रहे हैं पूरा इसको कंट्रोल करने के लिए, ताकि फ्लडिंग ना हो। फ्लडिंग ना हो, और जब हमें थोड़ा पानी का लेवल डाउन हो जाए तो उसको छोड़ दो, ताकि वहां का इकोलॉजी ठीक हो जाए। ये बेसिक प्रिंसिपल है ये, ठीक? राइट, ओके, विल गो टू द नेक्स्ट वन। हाँ, तो अभी पूरे इस रेस्ट ऑफ अरुणाचल में 48 माउंटेन पास है, जिसमें से 7 जो ग्रीन रंग में दिए हैं पेरेनियल है, 24/7 365 डेज ए ईयर खुले रहते हैं। इसमें स्नो वगैरह ज्यादा पड़ता नहीं है, काफी लो लेवल में है, और ये खुले रहते हैं, ओपन। जो मैंने 3 लाल में दिए, मुखवाला, जम्मू, तंगधारा, ये परमानेंटली क्लोज्ड है 365 डेज अ ईयर 24/7। ये परमानेंट स्नो बाउंड होते हैं। इसमें ये 5000 से भी ऊपर हाइट पे है। ये सब पासेस पे मैं गया हुआ हूँ, हर एक पास पे ये परमानेंटली बंद रहता है। इस पे निकल के जाना बड़ा मुश्किल है। आप पास के नजदीक उतरो भी, तो जब एक बार उतरा था तो कमर से ऊपर तक मैं सिंक कर गया था, और मैं उतना लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा आदमी भी नहीं, कमर तक सिंक हो जाता। पास के अंदर वो कह रहे थे वहां लोकल्स के साथ, पास के अंदर जाओगे तो आप पूरा स्नो में डूब जाओगे, वहां से निकलना बड़ा मुश्किल है। बहुत सॉफ्ट स्नो है, स्नो शूज पहन के भी आप निकल नहीं सकते। और लेफ्ट की तरफ ऑब्जर्वेशन PLA के गैरिसन्स में थोड़ा कम रहता है, लेकिन जहाँ पे ये गोयोरला शियोंगला लिखा है, गोयोरला के वहां से वो इनका ये आता है, अपना यारलुंग सांगपो अंदर आता है इंडिया में, वहां से उनका जो एरिया है पूरा क्लियर दिखता है। और जहाँ डीचू लिखा हुआ है 24/7 365 डेज ए ईयर, ये इलाका हमारे नजर में है। कोई हरकत वो नहीं कर सकता इस इलाके में हमारे देखे बगैर। और उसी तरह इसके इंटरनेशनल बाउंड्री जो म्यांमार है उसके 4 पासेस हैं। पंगसाउ बहुत फेमस पास है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लोगों ने पढ़ा होगा। स्टिलवेल रोड वो उसके थ्रू जाता था, लीडो से निकलता हुआ,
वहाँ पे जाता है इनटू नॉर्थ म्यांमार और मेक्तिला भामो होते हुए वो रुइली के अंदर चला जाता है। तो पंगसाउ पास से वो रोड अभी भी जाता है और पंगसाउ पास हमारे कब्जे में है, तो वहां से पूरा दिखता है म्यांमार का दूसरा साइड। नेक्स्ट। हाँ, तो ये दिखाया है, जो मैंने दिखाने की कोशिश की है कि ये सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं वैलीज, और ये इंटरकनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट शुरू हो गया है। और एक तो नीचे से जा रहा है सड़क, वो आगे दिखाऊंगा, और एक ऊपर से जा रहा है पूरा सड़क जो हम बना रहे हैं, उसको फ्रंटियर हाईवे कह रहे हैं, जो बिल्कुल हमको जो चाहिए, फौज को जो चाहिए इंटर वैली मूवमेंट के लिए, उस तरह से बनाया जा रहा है। और नेक्स्ट। हाँ, तो ये आप देखो जो अभी एग्जिस्टिंग है, अभी ऊपर देखो, ये जो पासीघाट से, मेबो से, बोमजूर से रोइंग होते हुए सीधा ऊपर वाले कनेक्टिविटी कंप्लीट कर दिया है। और ब्रिजेस जो बन गए हैं, एक तो ब्रह्मकुंड ब्रिज है जो बिल्कुल ही जहां ब्रह्मकुंड लिखा है वहां पे लोहित के ऊपर है कनेक्टिविटी फर्दर ईस्ट जाने के लिए, जो हाईलियोंग लिखा हुआ है उधर सब जाने के लिए। नेक्स्ट एक है माकूम, जहां पे दिखाया है वहां ढोला सदिया ब्रिज है जो तेजू के वेस्ट को कनेक्ट करता है। एक वो कनेक्शन अब आ गया है, जब मैं गया था केवल ब्रह्मकुंड था। और तीसरा है डिब्रूगढ़ से जो सीला पत्थर मैंने दिखाया हुआ है, एक पक्का लाइन है और एक डॉटेड लाइन है, रेल कम रोड ब्रिज, रेलवे लाइन भी है और रोड ब्रिज भी है। तो अभी आप देख लो, एनएलपी जहां लिखा है वहां से पूरा बसर सीधा पत्थर और वहां से नीचे डिब्रूगढ़ आ रहा है, और दूसरा रेलवे लाइन है वो सीला पत्थर से आगे पासीघाट होते हुए तेजू, लोहित और रूपाई करके कनेक्ट करके वापस तिनसुकिया को कनेक्ट कर देता है। तो 2 लूप बनाए हैं रेलवे लाइन के अभी हमें मूवमेंट के लिए, ये स्ट्रेटेजिक मूवमेंट के लिए। आम आदमी का मूवमेंट कम होता है यहाँ पे, उतना ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि सबको पता है कि भाई जो सिविलाइजेशन होता है, लोग रहते हैं पानी के पास रहते हैं। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो एलएसी के पास, लोग बहुत कम रहते हैं। बल्क जो अरुणाचल के लोग जो रहते हैं वो साउथ अरुणाचल में रहते हैं, जहां से मैंने दिखाया था बुरी दिहिंग है, एक दिहिंग है, एक और रिवर है तिरप रिवर है। तो वहां पे पानी काफी है और उनके ट्रिब्यूटरीज काफी हैं, तो वो काफी हेविली पॉपुलेटेड है। लेकिन नॉर्थ उतना ज्यादा पॉपुलेटेड नहीं है। तो दोनों को जब मिला लेते हैं तो पिछले सेंसस में आया था अबाउट आई थिंक 0.7 पर स्क्वायर किलोमीटर। एक आदमी भी नहीं मिलता आपको स्क्वायर किलोमीटर। ये तो मैंने देखा है जब ड्राइव करते जाते हैं, जैसे वैली का लेंथ दिखाया था 250 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, काफी देर तक आप ड्राइव करते रहते तो आपको कोई आदमी नजर नहीं आता, खुला रहता। लाइक डेजर्ट में जब जाते हो तो एक आधा ऊंट दिख जाता है और कोई दिखता नहीं है, यहाँ पे भी वैसे ही है। Okay. नेक्स्ट। हाँ, अभी आते हैं कि प्रॉब्लम एरिया क्या है। जैसे हम हमारे लैंग्वेज में हम बोलते हैं एक डिस्प्यूटेड एरिया और एक सेंसिटिव एरिया। डिस्प्यूटेड एरिया है वो जो हमने एक्सेप्ट कर लिया है दोनों साइड में कि हाँ यहाँ पे डिस्प्यूट है, फॉर्मल एग्रीमेंट हो गया। सेंसिटिव एरिया है कि हम जानते हैं कि आगे चल के डिस्प्यूट होगा इसके ऊपर, लेकिन अभी तक दोनों साइड ने फॉर्मली एक्सेप्ट नहीं किया है। तो यहाँ पे जो व्हाइट में राउंडल्स हैं हमारे इलाके में, आसाफिला लॉन्गजू, वो मैं आगे दिखा दूंगा, और बाकी उधर 3 है, फिश टेल्स, डीचू और ट्राई जंक्शन। फिश टेल्स 2 हैं, फिश टेल 1 एंड फिश टेल 2। तो आसाफिला लॉन्गजू का मैं दिखाता हूँ। जैसे हमारा कुंभ मेला होता है 12 साल में एक बार, उसी तरह से यहाँ पे इनका एक मेला होता है, तो वो मैं दिखा दूंगा। हर 12 साल में लंबा चक्कर लगाते हैं मेला के लिए, जैसे हम मंदिर में प्रदक्षिणा करते हैं। तो इनका क्या है कि हाई ऑल्टीट्यूड में कहीं भी वैली में उनको तालाब मिलता है, झील मिलता है, तो उसको एक मंदिर के जैसा मानते हैं और उसका प्रदक्षिणा करते हैं और उसका एक सेट रूट बनाते हैं। तो वो मैं दिखाता हूँ। नेक्स्ट। तो ये है पोतरांग, जिसका फोटो मैंने दिखाया, ये हेलीकॉप्टर से मैंने खींचा था। ये पोतरांग का तालाब है, ये पोतरांग तालाब है जो आप राइट पे देखो,
मेरे कैमरे से मैंने खींचा था। तो ये एक किंग कोर होता है जो हर साल ये अपना इसका प्रदक्षिणा करते हैं। और ताकसिंग करके जगह है जो हमारे पास है, और ये चीन वाले तिब्बत में जाते हैं और घूम के आके फिर ताकसिंग से, इस तरह से इनका ये चक्कर चलता है। नेक्स्ट सर। दूसरा जो होता है हर 12 साल में, इसको रिंग कोर बोलते हैं। जैसे अपना मैंने बताया था, अपना जो कुंभ मेला होता है, किसी एक जगह ले लो, नासिक या इलाहाबाद, तो 12 साल में एक दफा आता है। वो अलग बात है कि 4-4 साल में 3 जगह अलग जगह आते हैं, लेकिन जैसे इलाहाबाद में कुंभ है तो वो 12 साल बाद आएगा वहां पे। तो उसी तरह से 12 साल में इनका लंबा चक्कर बनता है। जो ताकसिंग से लेके हमारा इलाका लोंगजू है, बीसा है, माजा, बिदक, ये टीसीसी जो लिखा है तामाचुंगचुंग है, वहां से ताकसिंग आके वापस जाते हैं चोरटन से। ये चलता था इनका तकरीबन 59 तक। उसके बाद जब लोंगजू का इंसिडेंट हुआ, वो Q&A में अगर कोई पूछेगा तो मैं बता दूंगा, वो बंद हो गया, और 62 और के बाद तो बिल्कुल ही बंद हो गया। तो अभी ये चलता नहीं है। तो यही उनका एक क्लेम है ये इलाके का कि हमारा पिलग्रिमेज होता था। ये भूल जाते हैं कि अरुणाचली भी, इस इलाके के जो ट्राइब्स हैं वो भी उधर जाते हैं। तो रिवर्स मैं कह सकता हूँ कि चोरटन तक एरिया मेरा है, क्योंकि अरुणाचल के ट्राइब्स वहां जाते हैं इस प्रदक्षिणा के लिए। ये नहीं केवल टिबेटन ट्राइब्स आते हैं, अरुणाचल वाले भी जाते हैं वहां पे, जो लोकल्स यहाँ के हैं वो भी जाते हैं। तो आप अगर क्लेम करोगे कि बोलोगे कि ये क्योंकि ये टिबेटन्स यहाँ पे आते हैं, तो मैं काउंटर क्लेम कर सकता हूँ कि भाई हमारे जो अरुणाचली हैं वो भी जाते हैं। नेक्स्ट। हाँ, अभी आते हैं ये फिश टेल का सेंसिटिव क्यों। ये हमने फौजियों ने काफी दफा सर्वे ऑफ इंडिया को भी कवर किया, बताया हुआ है, हमने भी बताया हुआ है। ऊपर जो छोटे बॉक्स में आप देख लो, ये आपका सर्वे जनरल ऑफ इंडिया का मैप ऑफ इंडिया है, जहां पे वो 2 किंक दे रखे हैं जो मैंने दिखाए हैं फिश टेल करके। LAC के मुताबिक सीधे होने चाहिए। ये इन्होंने किसी टाइम पे सर्वे ब्रिटिशर्स ने या किसने गलत किया है, तब से आज तक इन्होंने मैप चेंज नहीं किया है। मैं तो 3 साल जो ADGMO था, बोल बोल के थक गया। MO से, फौज से, चीफ ने भी लिखा हुआ है। सम रीजन इन्होंने मैप अपने करेक्शन किए नहीं। नेक्स्ट। फिश टेल 1 जो है, वहां केवल मल्टीपल वेरी हाई ऑल्टीट्यूड रिज लाइन से। राजीव 1 मिनट, सॉरी, लेट मी इंटरप्ट। इनको बताओ कि यार ये फिश टेल क्यों बोलते हैं, वो मच्छी का, क्योंकि फिश के टेल के मुताबिक नजर आता है, तो इसीलिए फिश टेल बोलते हैं। देखते हैं तो अगर मच्छी के पीछे जो टेल निकलता है ना, तो तकरीबन उस टाइप का शेप होता है, तो इसीलिए उसको फिश टेल बोलते हैं। तो फिश टेल जो 1 है, वहां पे बहुत सारा मतलब वेरी हाई ऑल्टीट्यूड परमानेंटली स्नो बाउंड इलाका होता है। कुछ एक कोई हंटर्स ही जाते हैं वहां पे, वहां कुछ है नहीं। फिश टेल 2 है जो काफी वहां पे मूवमेंट हो सकता है, और एक 2 पासेस हैं वहां पे, हडीगरा डाकरू, वो मैंने फोटो ले रखा है, उसके दूसरे साइड लेक है, और गलाई ठकुराई, उसके ये गलाई ठकुराई पास को दिखा रहा है। ये दोनों पासेस हैं, वहां गया भी हूं मैं, लैंड भी करके वहां पैदल चल के भी गया हूँ उस पासेस पे। उसके दूसरे साइड उनके वहां से दिख जाता है, उनके विलेजेस हैं और 2-4 कैंप्स हैं चीनियों के। वो भी आते हैं अंदर, हम भी आते हैं अंदर। स्टैंड ऑफ भी हुआ है आमने सामने। जो LAC के स्टैंडर्ड नॉर्म है, जो LAC के नजदीक है वो दूसरा साइड पीछे चला जाता है, आपको LAC तक जाने देता है, और 24 घंटे बाद ही वो आता है। हम भी उसी तरह से अपने साइड पीछे आ जाते हैं, वो आ जाते हैं, वो चले जाते हैं, 24 घंटे बाद हम जाते हैं। तो उनको 24, दोनों साइड 24 घंटे का मोहलत लेके करते हैं। तो ये स्टैंडर्ड ड्रिल्स हैं, कभी यहाँ पे कोई झड़प ज्यादा हुआ नहीं। नेक्स्ट। दूसरा है ये ढीचू पास के इर्द गिर्द। तो ये जो हिल 100 है, ये सब वो पुराने जो फीट के मैप्स थे, तो उसमें से ले रखा है कि इतने मीटर हाई ये मैप हिल्स हैं ज़मीन से। तो हिल 100, हिल 90, हिल 80 करके दे रखा है। और ये जो मदन रिज है, उसमें 2 स्पर हैं, एक नॉर्थ स्पर, एक साउथ स्पर। नॉर्थ स्पर जो है वो LAC हमारे उसके साथ जाता है। पहले वो साउथ स्पर तक आते थे, अब नहीं आते, अब वो नॉर्थ स्पर में ही रह के चले जाते हैं। यहाँ पे
एक बार वो आए थे हिल 100 के पास, उनको सराउंड करके हमने फेंक दिया था वापस। ये फिशिंग के लिए आते थे, 2-4 बंदों को पकड़ के पीट पाट के वापस भेज दिया था। तो उसके बाद कभी भी इन्होंने यहाँ पे इस इलाके में ये जो LAC है इसको कभी पार नहीं किया। 2012 के बाद, हाँ 12 के बाद इन्होंने तकरीबन, हाँ 12 के बाद 12 सितंबर में लास्ट वो फिशरमैन को पीट के भेजा था हम लोग ने वापस, पीट पाट के। तो 2000 सितंबर 2012 के बाद से इस इलाके में इन्होंने कभी LAC पार नहीं किया, क्योंकि ये एक इलाका है जहाँ पे जैसे मैंने कहा था 24/7 365 डेज ए ईयर हम दोनों साइड में हमारे ऑब्जर्वेशन पोस्ट हैं और सारे कैमराज, नाइट विजन कैमराज, RT के जो TIIOEs हैं जो नाइट विजन का और सारा कुछ का देते हैं, वो सारा लगा के रखा हुआ है वहाँ पे। तो कोई भी हरकत छुपता नहीं है हमको इस वैली में। नेक्स्ट, दूसरा ये क्लेम करते हैं कि आपका इलाका डीचू के पीछे है, ये जो डीचू रिवर के पीछे है जो शेड किया हुआ, क्योंकि ऊपर वाला जो इलाका है वहां पे अगर हम बैठ जाएंगे तो इनके सारा कोई प्लान इनका सक्सेसफुल नहीं होगा। वो मलिंजा रिज लाइन हम बोलते हैं, उसके ऊपर बैठ जाएंगे तो कोई नहीं होगा। तो इसीलिए जो हम लेते हैं जाचेपला, जाचेपला है जो ट्राई जंक्शन है इंडिया, तिब्बत और म्यांमार का। वो चीन कहते हैं नहीं, तालुक पास है आपका, वो हम मानते नहीं है। हम तो रेगुलरली जालेपला तक जाते हैं, ऊपर पूरा पेट्रोल करते हैं, मलिंजा तक भी जाते हैं, सारा कुछ करते हैं। वहाँ पे हमारा दबाव ज़्यादा है तो वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर पाते। नेक्स्ट, तो ये जो था जैसे मैंने कहा था एक ट्रांस अरुणाचल जो नीचे नीचे की तरफ से बन रहा है, जो काले में मैंने दिखाया हुआ, और ये यहाँ पे खत्म होता है खौंसा से आगे आके, और ये डॉटेड लाइन जो दिया है ये सड़क और बोगीबील ब्रिज को कनेक्ट कर देता है। तो डॉटेड इसलिए दिखाया है क्योंकि अब ये असम के अंदर आ जाता है। असम में ये सड़क बन चुका है और बोगीबील ब्रिज भी इनॉग्रेट हो गया है, जो डबल डेकर है कि आपका नीचे रेलवे लाइन जाता है, ऊपर सड़क जाता है। तो ये कनेक्टेड है और ये तकरीबन कंप्लीट हो चुका है ये पूरा रूट। नेक्स्ट, अब ये फ्रंटियर हाईवे ये प्लान्ड है, इस पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो रहा है, जगह जगह बीच पे कंस्ट्रक्शन कर दिया है, कनेक्ट करना है। विजयनगर एक जगह है जैसे वो मेडॉग काउंटी का है, यहाँ पे सड़क एक और अलाइनमेंट से हमने बनाया था, कच्चा बनाया था। बिगेस्ट प्रॉब्लम है जहाँ चांगलांग लिखा है उसके ईस्ट पे किसी ने किसी जमाने में वहां पे उसको रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया, नामदफा रिजर्व फॉरेस्ट। अब जिसने भी बनाया उसने ये सोचा नहीं कि सड़क विजयनगर को जाना है, आप रिजर्व फॉरेस्ट बना देते हो तो, और टाइगर रिजर्व वगैरह बना देते हो तो वहां पे आप प्रॉपर ब्लैक टॉप रोड बनाने नहीं देता है आपको कोई, और मेंटेन करने नहीं देता है। तो एक काफी बात करके जब वहां पे मैं था डेप्टी और GOC, तो अपने नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल वालों को बुला के उनसे बात करके, सबसे बात करके अप्रूवल करके एक अलाइनमेंट नामदफा रिजर्व फॉरेस्ट के एज के थ्रू लगा के दे रहा था मैं, तिरप चांगलांग और वहां से कनेक्टिविटी वो तकरीबन बन चुका था, और ये भी बन जाएगा तो डबल कनेक्टिविटी, और उधर से फिर चांगलांग होते हुए तिरप आके आपको जो ट्रांस अरुणाचल हाईवे है उसके साथ कनेक्टिविटी मिल जाएगी। तो ये पूरा आपका ये बनना शुरू हो गया है, और बीच बीच में तो काफी हमने पहले ही अपने ऑप प्लान्स के मुताबिक बना चुके थे कि ये जरूरी जो सड़क हमको जरूरी था साइड स्टेपिंग के लिए, तो ये सारों को कनेक्ट करते करते ये लेके आए। नेक्स्ट, और हाइडल प्रोजेक्ट्स जैसे मैंने बताया था तो नंबर 2 है गेरुकामुख लोअर सुबानसिरी में, जहाँ सुबानसिरी ब्रह्मपुत्रा से मिलता है उसके थोड़े ऊपर है। तो जैसे मैंने बोला था स्टेप्स आते हैं, है ना, 4 स्टेप आते हैं। LAC का जो हाईएस्ट स्टेप है तो 3 और स्टेप आते हैं। तो स्टेप का फायदा ये होता है जैसे लोअर सुबानसिरी में तो फॉल मिलता है आपको, नेचुरल फॉल, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो नेचुरल फॉल से आपको गैस टरबाइन चलाने के लिए आसानी हो जाती है। तो वो आपका 2000 मेगावाट कैपेसिटी का है, और इतने सारे कुछ बना रहे हैं। ये तो थोड़े बड़े बड़े हैं उसको बता रहा हूं मैं। काफी मिनी और माइक्रो हाइड्रो पावर स्टेशन तो बहुत बन गए हैं और चल रहे हैं, ताकि वो लोकल एरिया के लिए उनको गांवों को बिजली दे सके। तो मिनी एंड माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट को मैं टच नहीं कर रहा हूँ, ये थोड़े बड़े वाले हैं
उन्हीं को दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट। तो ये जो इलाके हैं जहां जहां ये बन रहे हैं, तो स्टार मार्क मैंने दिया है, ये बड़े वाले जो हैं जो बन रहे हैं, और उम्मीद है स्लो चल रहा है, उम्मीद है कंप्लीट हो जाएगा। ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो यहां से आप पावर एक्सपोर्ट कर सकते हैं नेबरिंग स्टेट्स को, आप म्यांमार को भी बेच सकते हैं। नेक्स्ट। चाइना भी पीछे नहीं है, ये जो राउंड मारा है, जैसे सर ने बोला था कि साउथ तिब्बत इन्होंने 2003 में जो एग्रीमेंट के बारे में हमने बात किया था, साइन किया था, एसेंशियली बेसिकली एक्सेप्टेंस ये हुआ था कि भाई उनका ट्रेडिंग पोस्ट और हमारा ट्रेडिंग पोस्ट सिक्किम में, उनका ट्रेडिंग पोस्ट तिब्बत में, तो वो लेके वो कह रहे थे कि हमने एक्सेप्ट कर लिया है, तिब्बत उनका, ये उनका है। वो होते ही उन्होंने साउथ तिब्बत के ऊपर क्लेम करना शुरू किया, और 2006 में इनका वाटर मिनिस्ट्री में ये मैप है, जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर इन्होंने इतने सारे डैम प्लान, खुद के डैम्स प्लान करके रखे, जो इनके क्लेम्ड अरुणाचल उन्होंने। नेक्स्ट। अभी जो फेमस हम बात कर लेते, यारलुंग सांगपो पे जो बन रहे हैं, हरे में जो है, जो जांगमू है, वो एग्जिस्टिंग है। प्रपोज ये, इसके बारे में भी बात करूंगा, जो मेडोग, दादुचिया, दागुईवान, तो एक बताऊंगा मैं वो क्या प्लान कर रहे हैं, काफी बड़ा है। ये तीनों मिला के एक ही है डैम। साइट जहां पे तैयारी शुरू हो गई है ये पर्पल कलर में है, और काला है जहां पे इनका कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। तो इतने सारे हैं ये डैम नीचे की तरफ जो बना रहे हैं, ये 3 एक ही डैम है, वो मैं अगले स्लाइड में दिखा दूँ। तो ये है डैम जिसका जनरल शंकर जिक्र कर रहे थे, जो बना रहे हैं वो काफी सारे, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 14 है टोटल, 8 डैम बना रहे हैं, जो कह रहे हैं रन ऑफ द वाटर है, रन ऑफ द मिल है। बट इतने सारे डैम बगल बगल में करोगे तो रन ऑफ द मिल कैसे आएगा, मुश्किल हो जाता है। जैसे आप लेंगदा में देख लो, ज्याचा और देंगदा बगल बगल में, तो रन में नहीं आएगा, आपको रिजर्वायर बनाना पड़ेगा। तो है वहां पे ये प्रॉब्लम है। इसीलिए जैसे मैंने कहा और सर ने भी बताया था, अरुणाचल के चीफ मिनिस्टर साहब ने बोला था कि हम डैम और बराज बना के रखेंगे सियांग के ऊपर खास करके, ताकि वो फ्लडिंग जो होता है, पानी की कमी जो होती है, वो नहीं आए। नेक्स्ट। वो जो मोटुआ 3 थे, पेई, इन वो 2 जगह के बीच में एक जगह है पेई, और दूसरे साइड है मेडॉक, ये नामचा बरुआ है, जिसके अराउंड ग्रेट बेंड आता है। फॉल देखो आप, ये तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर मुश्किल से लंबा है, 3000 मीटर हाइट से 800 मीटर पे फॉल आ रहा है। तो वो क्योंकि नेचुरल फॉल आता है, तो गैस टरबाइन चलाने के लिए काफी ग्रेविटी और फोर्स मिल जाता है पानी के लिए, टरबाइन चलाने के लिए। एसेंशियली आप रिजर्वायर क्यों बनाते हो डैम में? रिजर्वायर बनाते हो ताकि वहां से आपका नीचे की तरफ आप टरबाइन रखते हो, तो पानी का फॉल जो है, वाटरफॉल जो है, टरबाइन को घुमाता है और आपको बिजली प्रोड्यूस होता है, और वो जो सरप्लस वाटर है वो निकल के जाता है। यहाँ पे आपको रिजर्वायर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नेचुरल फ्लो से पानी नीचे गिरेगा 3000 से 8000। दैट इज व्हाट दे आर लुकिंग एट। बट लाइक आई सेड कि दूसरे साइड 68 ग्लेशियर्स हैं, और ये भी परमानेंटली स्नो बाउंड एंड ग्लेशिएटेड एरिया है, परमाफ्रॉस्ट है। इसके नीचे से अगर टनल करते हैं, उसका उनके पास अभी तक टेक्नोलॉजी नहीं है। 1950s में उन्होंने ये रेलवे लाइन बनाने का प्लान शुरू किया था, जो तिब्बत को आता है फ्रॉम इनका ऊपर से, किंगदाओ से ऊपर से जो आता है रेलवे लाइन, इनका लासा बीजिंग का रेलवे लाइन, ये परमाफ्रॉस्ट के ऊपर आता है। तो ऊपर ऊपर से तकरीबन 50 साल इन्होंने पूरा टेक्नोलॉजी डेवलप किया, और फिर वो रेलवे लाइन बनाया। लास्ट इंफॉर्मेशन था आमदो के पास, वो कोलैप्स हो गया, परमाफ्रॉस्ट वो था, मेल्ट हो गया है उनका काफी लंबा पोर्शन, 850 मीटर लेंथ रेलवे लाइन और ब्रिज गिर गया है। वो बना कि नहीं अभी तक रिपोर्ट निकला नहीं है, वो गिर गया है ब्रिज। तो अभी ये परमाफ्रॉस्ट के साथ है, जब टनल करोगे क्या होगा, पानी काफी आएगा, उसको कैसे निकालोगे, क्या करोगे, तो इजी नहीं है। बट ये इनका प्लानिंग है।
नेक्स्ट, अभी करंटली इनका बिगेस्ट प्लान जो चल रहा है, पानी किस तरह से बीजिंग की तरफ ले जाए। तो एक वेस्टर्न रूट है जो सबसे वेस्ट है, एक सेंट्रल रूट है और एक ईस्टर्न रूट है जो शंघाई के वहां से लेके जा रहे हैं, तियानजिन पोर्ट, बीजिंग। और वेस्टर्न रूट है, येलो रिवर में पानी डालने की कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम यांगसी, क्योंकि येलो रिवर से इतना इन्होंने पानी खींच लिया है कि समर सीजन में तकरीबन 1000 किलोमीटर अंदर ही ड्राई हो जाता है, उनका पानी पहुंचता ही नहीं है सी को, तियानजिन के पास। बीजिंग का एरिया इनका डेजर्ट तकरीबन हो रहा है, काफ़ी सैंडस्टॉर्म्स आते हैं वहाँ पे, तो ये इनका ये दिक्कत है। और आगे चल के इनका प्लानिंग ये भी है कि अगर ज़रूरत पड़े तो यारलुंग सांगपो से ये ग्रेट बेंड के वहाँ से पानी निकाल के कनेक्ट करें यांगसी को, ताकि यांगसी से पानी और लेके जाएं। तो ये इनका जनरल प्लानिंग है अभी, वाटर डाइवर्शन टुवर्ड्स द नॉर्थ। नेक्स्ट, देखिए, मैं आई जस्ट वांट टू हाईलाइट, ये पूरा जो कहानी है इनका चाइना का, साउथ टू वाटर ट्रांसफर सिस्टम, क्योंकि नॉर्थ में पानी कम है और इनका मानना ये है कि साउथ में ज़्यादा पानी है। और वो पानी कहाँ है? ये यांगजी रिवर और ये जो पर्ल रिवर डेल्टा और जी रिवर है, इसके साउथ एक, और वहाँ पानी ज़्यादा है। ये 3-4 रूट जो इन्होंने बताया है कि ऊपर पानी लेकर जाना चाहते हैं, पर इसमें प्रॉब्लम है चाइना को। जो हमने वो क्लाइमेट चेंज का जो वीडियो किया था उसमें हमने पूरा बताया। प्रॉब्लम क्या है? पिछले 3-4 साल से ये यांगजी रिवर बेसिन में अकाल पड़ रहा है। पर साल तो पूरा सूख गया था, यहाँ तो बिजली भी नहीं उत्पादन हो रहा था, पानी भी नहीं था सिंचाई के लिए। तो ये इनका जो जितना स्कीम है ना, साउथ टू नॉर्थ ट्रांसफर, बोलने के लिए ऑन पेपर अच्छा है पर एक्चुअली होगा नहीं। जब होगा, ये पैसा खर्च कर चुके होंगे बेवकूफ चाइनीज, और ये कंगाल हो जाएंगे। काफी और खर्च कर चुके हैं सर, और काफी बेनिफिट नहीं मिल रहा है, लोग क्वेश्चन कर बिल्कुल। रहे हैं, हाँ, जैसे आप बोल रहे हैं, हाँ, लोग क्वेश्चन कर रहे हैं किसको क्वेश्चन कर फायदा रहे हो हैं। रहा है। हाँ, यही बात है कि चाइना क्यों कंगाल हो जाएगा। चाइना इसीलिए कंगाल हो जाएगा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा डुबो रहा है जो इसको पैसा वापस नहीं देगा, ये इसमें कोई फायदा नहीं होगा। आप सोच लो, बिगेस्ट, अगर आप घर में आपने एक बड़ा दीवार बना दिया, आप वो दीवार किसी वजह से क्यों ना हो, पर उस दीवार से आपको कोई रेंट भी नहीं मिलेगा। अगर आपके घर में एक और कमरा बनाओगे, कम से कम रेंट में देके उससे पैसा कमा सकते हो। दीवार बना दिया तो फायदा नहीं है। उसी तरीके से ये इनके जितने इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम है, ये डेड इंफ्रास्ट्रक्चर है। प्रॉब्लम लोकल्स को ये हो रहा है, जो जो यहाँ पे इनके रिवर्स के साथ रहते हैं वो फिश बहुत खाते हैं, और ये प्रोजेक्ट से उनके फिश को इफेक्ट हो रहा है, वो फिश मर जा रहे हैं। नेक्स्ट, तो जो हम सोचते हैं कि चाइना सब कुछ कर रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वो थोड़ा सोच बदली करने की जरूरत है। अभी लेते हैं कि मैंने आपको ग्रुप आर्मीज कहाँ है बता दिए। अभी देख लो, चाइना ने अपने तरफ मल्टी फ्रंट एक्सिस खुद खोल दिया, उसने खुद ही खोल दिया। कैसे? इंडिया के साथ लड़ाई ले लिया है, जापान साउथ कोरिया के साथ लड़ाई ले लिया है, ताइवान के ऊपर लड़ाई ले लिया है, अपने साउथ चाइना सी में भी लड़ाई ले लिया है। उसको डर लग रहा है कि अफगानिस्तान से वो अपने उइघुर मिलिटेंट्स जो है गिलगिट बाल्टिस्तान या ताजिकिस्तान से लेके अंदर आ जाएंगे। और इंटरनली भी वो अपने प्रेशर में है, क्योंकि वो उसके पीएलए के ऊपर भरोसा नहीं है, उसके सीपीसी के साथ लड़ाई चल रही है, लोग भी उसके अगेंस्ट है। अगर इस टाइम पे अगर वो हमसे लड़ने की कोशिश करेगा तो 2 ग्रुप आर्मीज तो उसके पास हैं, 77 और 76। मैक्सिमम सेंट्रल ग्रुप आर्मी से एक अगर निकाल सकता है तो मैक्सिमम एक निकाल सकता है, और 2 मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के जो डिप्लॉयड है वही है। इससे कोई मेजर लड़ाई इंडिया के अगेंस्ट नहीं लड़ सकते आप। 2 ग्रुप आर्मी मतलब 2 कोर, 3 ग्रुप आर्मी मतलब 3 कोर, क्या लड़ लोगे? जहां हम प्लान करते थे कि 62, 34, 62 सब लेके आएगा, 34 डिवीजन लेके आएगा, 62 डिवीजन लेके आएगा, और कहाँ 6 या 18 कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड। और ये मल्टी फ्रंट, अगर मल्टी फ्रंट नहीं करता, केवल इंडिया के अगेंस्ट करता, तो कम से कम 6 नहीं तो ज्यादा लेके आ जाता। इनिशियल में तो पूरे जो सेंट्रल थिएटर कमांड के सारे आ जाते और एक आधा ईस्टर्न सदर्न थिएटर कमांड से भी ले लेते, तो आपके 6 ग्रुप आर्मीज आ जाते।
अभी आधा से भी कम हो गए। अब वो सेंट्रल थिएटर से निकाल पाता है कि नहीं, क्योंकि जो सेंट्रल थिएटर कमांड है वही है बीजिंग के और सीपीसी के और शी जिनपिंग के लिए प्रोटेक्शन के लिए, कि अगर ये इसके चहेते लोग, नियर एंड डियर जो हैंड पिक लोग हैं, उन्हीं को रखता है इस पे इन कमांड, इनमें से निकालेगा जब उसके अगेंस्ट ही चल रहा है इतना कुछ गदर। तो इसका ये स्यापा है। तो इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि इससे कुछ ना कुछ एलएसी में छोटा मोटा करने की काबिलियत रखता है। कोई मेजर लड़ाई जैसे 62 वाला लड़ाई और कुछ लड़ाई ऐसा नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ एलएसी के ऊपर, आपके ऊपर छोटा मोटा, जैसे ईस्टर्न लद्दाख में किया हुआ, ऐसे कुछ करने की काबिलियत वो रखता है। नेक्स्ट। या बिफोर मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जो जनरल राजीव नारायणन ने अभी बताया है वो बहुत ही खास चीज है, बहुत ही खास चीज है। आई वांट टू एलॉबरेट ऑन इट। जब हम हायर कमांड कर रहे थे, ये 2000 की बात है, 2001 की बात है, तो उस वक्त हमने ये जो रेडलैंड की तरफ से अगर ऑफेंसिव आएगा भारत के अंदर, कैसे आएगा, ये हमने वॉर गेम किया था। उस वक्त मेरे को बना दिया रेडलैंड कमांडर, और मेरे को आपकी किस्मत ऑलवेज है, रिमेम्बर सीनियर कमांड में भी आप और मैं रेडलैंड में थे। रेडलैंड में थे। तो ये हमें दे दिया गया था, और साथ साथ हमें 27 डिवीजन दे दिया था, 27 डिवीजन, और उन्हें बोला कि भाई भारत के ऊपर आक्रमण करो। तो हमने जोर लगा दिया भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए, ज्यादा नहीं मिला, ज्यादा हासिल नहीं हो पाया। ठीक है, क्यों? अभी ये जो बोल रहे हैं, मुश्किल से 6 से 7 डिवीजन लेके आ सकता है। ठीक, 6 से 7 डिवीजन वो, और अगर हमारा भी क्षमता है, हमने 2 माउंटेन कोर खड़ा कर दिया। ठीक, उसमें भी 5-6 डिवीजन है, उसको 5-6 डिवीजन आएंगे, हमारा 5-6 डिवीजन आएंगे, और स्थगित वही, जैसे ईस्टर्न लद्दाख में हो रहा है आज के दिन। उसके पास जितने फौज है उस साइड, हमारे पास उतना फौज इधर है, खत्म। हाँ, छोटा मोटा जैसे उन्होंने बोला, छोटा मोटा करने की कोशिश करेगा, चोरी चुपे कहीं जाके थोड़ा नफरी ज्यादा बढ़ा के एक पोस्ट चेन लिया, ये वगैरह वगैरह, उससे ज्यादा इसकी क्षमता नहीं है कुछ करने की। दूसरी बात, अगर ये 1-2-3 डिवीजन इकट्ठा करके एक जगह घुसेड़ देगा और कोई एक हमारा पोस्ट कब्जा भी कर लेगा, तो हमारा पास भी वही क्षमता है, हम भी वही कर सकते हैं। तो ये जो सोच, जो 2022 का सोच है, वो खत्म हो गया, वो बिल्कुल खत्म हो गया। तो हमें ये सोचने की जरूरत नहीं कि वो के हमारे ऊपर आक्रमण करेगा। मेरे ख्याल में उसके पास वो क्षमता बिल्कुल खत्म हो गया। इसीलिए मैंने कई ये लोग, मैंने पढ़ा है लोगों को बोलते हुए भी कि सेंट्रल सेक्टर में आ जाएगा। इतना ही मैं बता दूं, एमओ में मैं रहा हूँ, काफी है सेंट्रल सेक्टर में उसको रोकने के लिए, वो कुछ नहीं कर सकता। बस। और एक और चीज याद रखिए, इन इलाकों में, हाई एल्टीट्यूड्स में, नॉर्मली जब अटैक रेशियो होता है, एक एक इलाके को कब्जा करने के लिए आपको 3 गुना आदमी चाहिए, मैन पावर। माउंटेन्स में इसका स्ट्रेंथ हो जाता है 6, नॉर्मल माउंटेन्स में 6 से 7 गुना चाहिए, और हाई एल्टीट्यूड्स में ये नफरी हो जाते हैं 9 से 12। जब तक आपको 9 से 12 गुना आदमी नहीं है, एक पोस्ट को कब्जा नहीं कर सकते। ठीक, उसके पास इतने फौज नहीं है। अगर आपको एक बटालियन वहां पकड़ रहा है, तो उसको 12 बटालियन लगाना पड़ेगा। 12 बटालियन मतलब एक डिवीजन खा गए। अगर 2 जगह इसने अटैक कर लिया, तो 2 डिवीजन 3 डिवीजन खा जाएंगे, और उसके पास कुछ बचेगा नहीं अपने आप को बचाव करने के लिए। ये चीज अब हमें सबको पता होना चाहिए। ये आसान नहीं है भारत को टच करना, वो जमाना गया। अगर वो करता है तो हमारा जो क्यू या काउंटर अटैक या काउंटर ऑफेंसिव जाता है, उससे बचने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं, यहीं से फिर बचेगा वापस निकाल के जाना पड़े। हाँ, तो जैसे हुआ था, ये याद दिलाता हूँ, 65 में 65 ये पाकिस्तान छम सेक्टर में आया था,
जब हमने ऑफेंसिव डाला अंदर लाहौर में शकरगढ़ सेक्टर में और सियालकोट सेक्टर में, उसके पास कुछ नहीं था, तो वहां से ट्रुप्स निकाल के लाना पड़ा था उसको। Yeah. वही हालत है अभी चाइना का। यस, नेक्स्ट। हाँ, ये तो फिजिकल मैप है जो आपको दोबारा दिखा रहा हूँ कि जो टिबेटन प्लेटो का इलाका है, देख लो आप कितना मुश्किल इलाका है, इतना आसान नहीं है उसका निकल के आने के लिए। तो ये काफ़ी उसके लिए मुश्किल होता है कि किस तरह से वो आए, कितना जल्दी आए, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा रोड मेंटेनेंस प्लाटून और खड़ा करके डालना पड़ेगा। ये नहीं है कि वो सड़क बना रहे हैं, नए सड़क बना रहे हैं, नए रेलवे लाइन बना रहे हैं, उसको मेंटेन करके रखने के लिए और लोगों को खड़ा करना पड़ेगा कि उसको मेंटेन कर। तो लैंडस्लाइड वगैरह वहाँ भी होता है, काफ़ी एवलांच और लैंडस्लाइड वहाँ भी होता है, तो वो रोक नहीं सकता उसको। राइट। तो ये पिछले 45 मिनट्स में जनरल नारायणन साहब ने हमें पूरा बताया इसमें कि एक चीज बताना था, या जो प्लीज। मैंने मदन रिज का दिखाया था, वहां पे एक जगह है किबितु। किबितु, एज द क्रो फ्लाइज, इज क्लोजर टू बीजिंग देन दिल्ली। ठीक है, और वो इंडिया का इलाका है। दूसरा, वलोंग के आगे एक गांव है जिसका नाम है डोंग। 3 लेवल पे है वो गांव। हमारे जो हिल फीचर्स है वहां पे, हाँ, किबितु यहाँ पीछे है सर, ये किबितु है, ये किबितु है, नीचे बिल्कुल के से लिखा हुआ है, वो किबितु है। और इसके नीचे है एक जगह डोंग। म्यांमार के जो हिल्स हैं, वो उसका फीचर ऐसा है कि इंडियन लैंडमास के ऊपर, ये पूरे इंडियन लैंडमास के ऊपर सबसे पहला सन रेस पड़ता है, वो डोंग पे पड़ता है। ये Right. यहाँ पे लोहित जहां लिखा है, उसके ऊपर जाओ, वलोंग, तिलम, और राइट साइड पे डोंग है, छोटा सा लिखा है। जहाँ पे वो सती नाला आ रहा है, वो डोंग है करके। डोंग इज द प्लेस, द अपर हाईएस्ट जो डोंग लेवल पे जो डोंग है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, जो इंडिया के ऊपर, जो नॉट इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडिया के ऊपर जो पहला सन रेस पड़ता है, वो डोंग पे पड़ता है। उसके बाद रेस्ट ऑफ इंडिया पे आता है। वो Right. पहाड़ों की और पासेस की अलाइनमेंट ही है कुछ ऐसी। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द रेस्ट ऑफ लिटोरल इंडिया एंड अदर प्लेसेस। Yeah, that understood. तो पिछले 45-50 मिनट्स में हमने जान लिया कि अरुणाचल प्रदेश क्या है, हमारे क्या प्रॉब्लम्स हैं वहाँ, उनका क्या प्रॉब्लम्स हैं वहाँ, और ज़्यादा फर्क नहीं है इधर, ये मैं बता सकता हूँ। जैसे जनरल नारायणन साहब ने बताया, ये तकरीबन सारे इलाकों में हम गए। खैर क्योंकि ये वहाँ के डिव कमांडर थे, तो ये इनका जानकारी और ज़्यादा है हमारे से, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यू नो, ओके, 1 minute, there's some, okay, yeah. So it's a tough area, it's a heavily underpopulated area, और वहाँ उतना इट्स नॉट इजी उसके लिए भी और हमारे लिए भी। बट जब इसीलिए हमने ये बताया था सबको, सो दैट यू पीपल नो व्हेन यू से चाइनीज थ्रेट कि वो अरुणाचल ले जाएगा, ये ले जाएगा, कुछ नहीं ले जाएगा वो, आप फिक्र मत कीजिए। राइट। So having said that, having seen this wonderful presentation, can we take some questions?